Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter The Tale of Custard the Dragon. So far we have now studied till stanza 11 till stanza 10 in two part of the videos, part 1, part 2. And in this third part of the video we are going to complete all the stanzas remained. We will also try to cover up the question answer if possible then. So now let's begin with stanza number 11, that is, the pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. So now let's start with hold on just 1 second. Let's start with the word meaning first. Gapped, that is gapped, that means stared with mouth wide open. That means stared with mouth wide open. Gulped, that means swallowing. Next, grog. Grog means a drink. Grog means a drink. Flagon. Flagon means a container made of silver in which drink is stored. So you can say, like, if you have a Pepsi Cola, if you have drunk, you might have seen the container. Right. Now, gobbled, swallowed hurriedly. Gobbled means swallowed hurriedly. Now let me explain it. In this stanza, the narrator says, the poet says, the pirate got so shocked by the dragon's reaction that he opened his mouth wide with shock, and to gather some strength he drank some alcohol from a container in his pocket. Custard the dragon ate every bit of this fierce looking pirate. कहता है कि जो पायरेट वो ड्रैगन का जो रिएक्शन है, जब उसने मुंह खोल करके पूरा चौड़ा मुंह लंबा चौड़ा खोला तो वो शॉक हो गया, अचंभित हो गया और वो डर गया, और उस डर को मारने के लिए उसने अपने जेब में से कुछ एक छोटा सा कंटेनर निकाला जिसमें अल्कोहल वगैरह होगा, दारू वगैरह होगा, जिसको पी करके उसने अपने डर को मारने की कोशिश की और उससे फाइट करने की कोशिश की। उसने पूरा हिम्मत, अपना साहस गैदर किया और उसने बंदूक से 2 गोलियां चलाई, लेकिन वो गोलियां मिस कर गए। अब जो कस्टर्ड द ड्रैगन था वो अब उसके ऊपर इतना गुस्सा हो गया कि उसको एकदम काट खाने के दौड़ा। उसको बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं था वो। नाउ विल सी द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस राइमिंग स्कीम। ए बी बी, फिर इसमें हम देखेंगे एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन दैट इज गल्प्ड सम ग्रॉग, जी साउंड है। गल्प्ड सम ग्रॉग, जी साउंड, दैट इज एलिट्रेशन। फिर उसके बाद इमेजरी है। इमेजरी में आप देख सकते हैं, दे हैव शॉन द रिएक्शन एंड एक्शन मेड बाय द पायरेट ऑन सीइंग द ड्रैगन। एक इमेजिनेशन पैदा करने की कोशिश की गई है, क्रिएट करने की कोशिश की गई है इस स्टैंजा में। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज स्टैंजा नंबर 12। बेलिंडा embraced him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and blink in glee did Gerrit around the dragon that ate the pirate. Now, first of all, we'll go through the word meaning. Here, embraced means hug, hug karna, to hug. बेलिंडा जो है अपना पूरा बाजू खोल के उसको हग करती है। माउंड मीन्स फील सॉरो, आई मीन वो जो एक मरने के बाद लोग रुदाली करते हैं, रोते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग। तो फील सॉरो फॉर द डेथ ऑफ समवन, दैट इज़ कॉल्ड माउंड।
Next is victim. Victim is sufferer. Glee means delight. Glee means delight. And Geralt means danced. Now let me explain the stanza. So in this stanza, the poet narrates, when the pirate was dead, जब ड्रैगन ने उसको बिट बिट करके काट के उसको मार दिया, when the pirate was dead, Belinda hugged the dragon and Mustard licked him. Mustard जो डॉग है, नो, वो लिक कर रहा है उसके, नो, you also see that how they are licking their beloved one. No one was sad for the death of the pirate. They all were happy. Both Ink and Blink were running around the dragon in happiness. So here the poet says that all the characters were happy and they were showing their gratitude towards the dragon as he had saved them. आपने देखा कि जब पैरेट मरता है तो बेलिंडा उसको प्यार से गले लगा लेती है और मस्टर्ड उसको लिक करने लगता है. कोई यहाँ पे खुश, मतलब कोई भी यहाँ पे मतलब दुखी नहीं था, सारे लोग खुश थे क्योंकि वो पैरेट मर चुका था. यहाँ तक कि जो इंक और ब्लिंक है वो भी तेज़ी से दौड़ते हुए आते हैं ड्रैगन के पास खुशी से. और पोएट यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स इस पोएम में हैं, नाउ दे आर हैप्पी, और वो अपना ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि उसने जो है उन लोगों की जान बचाई है पायरेट से. लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं हम इसमें. व्हाट आर द लिटरेरी डिवाइसेस? राइमिंग स्कीम AABB वही है सेम पूरे में एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. हिम, विक्टिम, गैरेट, पैरेट दूसरा है आपका. और अलिट्रेशन भी इसमें है आपका. ग्ली, डिड, गैरेट, जी यहाँ पे देख लेंगे. ग्ली, जी एलिट्रेशन है. उसके बाद हम देखते हैं एसोनेंस है. एसोनेंस यूज ऑफ वॉवेल साउंड. ठीक है. नो वन माउंड, नो वन माउंड, ओ साउंड, ओ साउंड यहाँ पे भी है, माउंड, ओ साउंड. ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर में भी है आपका कंटिन्यूअस है. दिस इज कॉल्ड एसोनेंस. फिर उसके बाद हम देखेंगे यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड और है, दैट इज़ आई. आई साउंड का भी यूज़ है, दैट इज़ इंक, ब्लिंक, आई. फिर इसमें आप देख सकते हैं ग्ली, ई, ग्ली में भी आई साउंड आता है. और उसके बाद आपका डिड में भी आई साउंड आ रहा है, आई साउंड. सो ये आपका एसोनेंस है. एसोनेंस मीन्स यूज ऑफ वॉवेल साउंड. नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं स्टैंजा नंबर 13 की तरफ. बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव if I had been flustered. And up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is brave than me. Now let us see the word meaning first. यहाँ पे फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अपसेट और कंफ्यूज्ड. फ्लस्टर्ड का मतलब होता है अपसेट और कंफ्यूज्ड. और ऐसा कुछ इसमें वर्ड मीनिंग मुझे लग नहीं रहा जो आई कैन टेल यू. नाउ विल एक्सप्लेन इट. आई विल एक्सप्लेन इट. So in this in this stanza, the poet says, after they thanked and showed their love towards the dragon, जब उन्होंने उनका उस ड्रैगन का शुक्रिया अदा किया, अपना प्यार, अपना मोहब्बत ड्रैगन को दिखाया, दे चेंज देयर माइंड, और उन्होंने अपना रंग बदल लिया, उन्होंने अपना दिमाग ही बदल लिया. देखिए कैसे बदल जाते लोग इंसान. दे वर रिमाइंडेड ऑफ हाउ दे यूज टू मेक फन ऑफ दिस कावर्ड ड्रैगन एंड नाउ दे ऑल वर प्रेजिंग हिम. उन लोगों को बताया गया कि कैसे पहले वो लोग इस ड्रैगन का, इसको कावर्ड ड्रैगन बोल करके उसका मजाक उड़ाया जाता है, और अभी यही लोग जो है उसकी प्रशंसा कर रहा है. सो एट वंस द डॉग सेड दैट आई वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ
The dog said. So at once the dog said that it was just because of some confusion that he was not able to do something, otherwise he would have been twice as brave as custard. तो डॉग जो है आई मीन मस्टर्ड बहुत तेज़ बन रहा, और वो बोला कि कुछ कन्फ्यूज़न हो गया था, उसके कारण उसने अपना ब्रेवरी नहीं शो किया, नहीं तो वो भी जितना आई मीन कस्टर्ड ताकतवर है उसका 2 गुना ताकतवर जो है मस्टर्ड है. फिर बोथ इंक एंड ब्लिंक ऑल्सो सेड दे वुड हैव बिन 3 टाइम्स. तो थोड़ा सा बढ़ा के बोल रहे हैं ना. मस्टर्ड ने बोला कि मैं दो गुना ज़्यादा हूँ, तो इंक और ब्लिंक बोला कि तुम 2 गुना हो तो हम 3 गुना है. फाइन. सो दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग. एंड उसने कंपेयर भी किया कि कस्टर्ड से 2 गुना और 3 गुना ज़्यादा ताकतवर ये लोग हैं. कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इस कारण वो लोग भाग गए, नहीं तो वो लोग काफ़ी तेज़ तर्रार हैं और ताकतवर हैं. सो टू दिस द ड्रैगन सेड that he fully agreed to this, that all of them were more powerful and brave than him. और ड्रैगन एक्चुअली उसने जस्ट हामी भरी कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो. जस्ट नाउ लिटरेरी डिवाइस इसमें हम देखेंगे व्हाट आर द लिटरेरी, दैट इज़ मस्टर्ड, फ्लस्टर्ड एंड आपका ब्लिंक, इंक, अग्री, मी. ठीक है. और इसमें आप लोग ढूंढ लीजिए. आई थिंक वीडियो विल बिकम सो लॉन्ग. नाउ विल सी नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 14. सो Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon. And her Realio Trulio little pet dragon. Belinda is Belinda is as brave as barrel, full of beers, and ink and blink chased lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. So I have just read both the stanza all together, and I'll try to finish it now. So in this stanza, the poet says that at last the poet used the same lines again. लास्ट में आप जैसा कि देख सकते हैं कि पोइट ने उन्हीं लाइनों का मतलब दोबारा यूज किया है टू शो दैट आफ्टर दिस टेरिफिक एपिसोड, जो उनके साथ में एक घटना ऐसा घटा, दुखदाई घटना घटा, उसके बाद में कैसे द ड्रैगन वॉज द हीरो, ड्रैगन को हीरो मतलब बनाया गया इस पोएम में, वेयर ऑल द अदर कैरेक्टर्स स्टिल अंडरमाइंड हिम by saying that they were more powerful than him and could have handled the situation in a much better way. जहाँ पे ये भी देखा गया कि और जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो पहले तो उसको धन्यवाद देते हैं, थैंक्स करते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि इस स्थिति को और अच्छे से संभाला जा सकता था, अगर मैं होता तो ऐसा करता, मैं होता तो ऐसा करता. दे वर जस्ट आई मीन फेक रहे थे वो लोग, राइट. नाउ बेलिंडा स्टिल लिव्स. बेलिंडा जो है अभी भी उसी वाइट हाउस में रहती है जहाँ पे उसके साथ में इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड साथ में उसके साथ रह रहे हैं. एंड दे आर वेरी ब्रेव. सारे लोग काफ़ी ताकतवर हैं. वेयर एज द ड्रैगन इज़ स्टिल अ कावर्ड, जहाँ पे अभी भी उस ड्रैगन को कावर्ड बोलते हैं, समझा जाता है. हु ऑलवेज वांट्स टू स्टे सेफ इन हिज केज, जो हमेशा अपने केज में सेफली रहना चाहता है, कि डोंट वांट टू एक्चुअली डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइट. किसी केज में सेफ रहने का मतलब ये नहीं कि वो आप ताकतवर नहीं हो. दैट मीन्स यू डोंट वांट टू फाइट, यू कैन रेजिस्ट. आप रेजिस्ट कर सकते हो, जब आपके ऊपर आक्रमण होगा तो आप रेजिस्ट कर सकते हो. तो अगर आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी को पीट नहीं रहे हो, तो डजंट मीन दैट यू आर नॉट ब्रेव, राइट. इसमें लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं. रिफ्रेन है, रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन, एंड रियलियो एंड ट्रूलियो. ये रिफ्रेन है, एंड रियलियो एंड ट्रूलियो यहाँ पे. ओके. फिर उसके बाद हम
देखते हैं रिपीटेशन है, स्टैंजा हैज़ बीन रिपीटेड, सेम स्टैंजा जो ऊपर में था उसको रिपीट किया गया. So now dear student, we have finished all the stanzas of this poem, and I hope you all have understood it completely. I have just explained all the literary devices, all the things, word meanings and stanza wise explanation in Hindi and English both. So I hope you have liked and you have understood this topic chapter completely. Now we'll see question answer of this chapter in next video, because I just don't want to make it boring. It's almostly I think 16-minute video. So we'll meet in next video with the question answer of the same chapter. So stay tuned with the channel and do like and subscribe the channel for latest information, for latest videos. Thank you everyone. We'll meet with new topic, new video in coming few days. Thank you everyone and have a nice day.